Hello, wonderful friends, and welcome to the International Fab Talks. It's really a moment of joy to be connected with you and with our unsung heroes. There are several unsung heroes across the world. You can find several of them in India and abroad as well. Friends, join me to welcome our celebrity and guest for today. He is a great person who I have met who's able to do so many things at the same time. He's a multitasker. He's Kankanjeet Patwari, joining us all the way from Barpeta, Assam, India. A lovely person, a person who would bond with you the very first time you connect with him. So I happened to meet him just a few days ago, and there was a good bonding between us, and he has agreed to be here with us on the International Fab Talks. चलिए हम उनको स्वागत करते हैं इस मंच पर. Hello sir and namaste. Thank you for joining. नमस्ते मैम. Thank you so much for being here. It's really a pleasure to have you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आपके बारे में थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे आप कौन है. बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, थोड़े लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा आपके बारे में शेयर करूंगी और ये इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे. जरूर. यस सर. My dear friends, he's a very humble person and one who is down to earth and very practical and polite as well. That's what we look out in people who are polite and who do not have ego. Now, who is this person? You must be wondering, who is this personality? As I earlier mentioned, he is Kankanjeet Patwari. He's joining us all the way from Barpeta, Assam. As I earlier mentioned, Assam is located in India, friends. If you are an outsider out of India, this is a beautiful place called as Assam. And you know who is this celebrity who's with us today? He is a social media influencer. He's an actor. He's a dancer, a great human being, having all of these talents, multi-talented, you could say. And apart from that, he also holds a job in the postal department. Apart from being, a full-time job holder, he also has this wonderful passion of creating content online to spread the Indian culture and the Indian values, the Santana Dharma, they call it, Sanatan Dharma, if I can get that right, Sanatan Dharma. He's focusing on that and focuses on various mythological characters from the Ramayana, Mahabharata, etc., and presents them so well. And he's able to present both the male and female version of various mythological figures that are present in our epics. So friends, join us to know more about his life, as to why he does this, where the passion began and how. चलिए हमारे साथ जानेंगे सर इस पैशन में, या इस क्या कहते हैं, उसका जो पॉजिटिविटी है या जो प्रभाव है सोसाइटी में कैसे फैला रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को आगे कैसे ले जा रहे हैं. क्योंकि आजकल हमने देखा है बहुत सारे लोग जो कंटेंट प्रेजेंट करते हैं ऑनलाइन तो उतना खास नहीं है, और फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली वो कंटेंट नहीं रहा आजकल. तो आज देखेंगे हमारे जो सेलिब्रिटी यहाँ पर जो आए हैं तो किस तरह के कंटेंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और क्या समाज को क्या बताना चाहते हैं इस कंटेंट के साथ. तो चलिए जानेंगे. मैं तो उत्सुक हूँ जाने के लिए, आप भी चलिए हमारे साथ. सर, तो आप यहाँ पर हैं आज, वो तो एक सपना सच हुआ हमारा जो आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं. बहुत सारे लोग आपका काम को बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि वे और देखें आपका काम, भारत में ही नहीं बाहर भी. तो आपके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट करेंगे आप ही के साथ. खुद के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? या मैम, एक्चुअली मैंने जब शुरू किया था तभी से मुझे लोग पसंद करने लगे थे, क्योंकि अभी तो मतलब हर सोशल मीडिया पे बहुत ही मतलब गंदा गंदा दिखता है. हर कोई मतलब अपने फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए, अपना मतलब फेमस कैसे हो, कोई भी काम करके, अच्छा काम या बुरा काम. तो मोटिव ही वही है कि मेरे अकाउंट को कितना ग्रोथ मिले. तो मेरा मोटिव ऐसा नहीं था. मैंने सोचा कि मतलब मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा. जब पहले तो मतलब फिल्म जो होते थे ना, तो हम सब लोग, परिवार के सब लोग एक साथ देखते थे. तो मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना मेरा रील हर सभी लोग अपने परिवार को एक एक कर दे. इसलिए जब मैं लाइव आता हूँ ना सोशल मीडिया पे, तो बहुत मतलब लोग मतलब अपने फैमिली के साथ बैठ के मेरा लाइव देखते हैं, और ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, हम एक साथ आपके वीडियो देखते हैं,
और किसी ने बोला है कि मेरा जो 2-3 साल का बेटी है वो भी आपके रील्स देखते हैं। मैं भी मेरा हस्बैंड के साथ देखती हूँ। मैं ससुर मेरे ननद के साथ आपका वीडियोस देखता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मैंने परिवार को मतलब एक किया है थ्रू रील्स या मतलब थ्रू वीडियो। वरना तो हम लोग अकेले ही मतलब देखने के उतना लायक नहीं है, इतना मतलब गंदगी है। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा-थोड़ा सोशल काम कर रहा हूँ थ्रू रील्स। हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, हैट्स ऑफ टू यू, दैट्स वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं आप। और आप जिस परफेक्शन से करते हैं, तो हम लोग सब हैरान हैं, तो ये इंसान कैसे कर पाते हैं ये सब। तो आप किरदार जो आप ये करते हैं, शेयर करते हैं, वो मेल वर्जन भी है, फीमेल वर्जन भी है। आप इंसान एक हो, तो ये दोनों वर्जन आप इतनी अच्छी तरीके से वो पात्र निभाते हैं, तो हम लोग सब हैरान हैं। तो ये सब कैसा होता है? एक मैजिक, मुझे तो मैजिकल लगती है। तो आप थोड़ा सा अपना सीक्रेट बता दीजिए। बहुत लोग कमेंट करते हैं और मुझे डीएम भी करते हैं कि आपसे होता कैसे है। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता हूँ कि मेरा कैसे होता है। तो जब मेल करता हूँ तो मैं पूरा एकदम फील करके करता हूँ कि मुझे तो मेल जैसा होना है, वो बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन। और जब फीमेल का लुक मैं प्रेजेंट करता हूँ तब मतलब एकदम एकदम एक फीमेल की जैसे ये बाल यहाँ पे लगा लेता हूँ, नोज पिन, यहाँ पे इयररिंग्स, और मतलब मेकअप भी मतलब ऐसे ही करता हूँ। तो मतलब लोगों को डिफरेंट लगता है, ये तो मेल है और ये तो फीमेल है। तो मतलब जब मैं करता हूँ ना तब मैं करने से पहले मतलब गॉड को मतलब प्रे करता हूँ। हर रील में गॉड को प्रे करता हूँ कि भगवान मुझे शक्ति देना, मैं मेल करूँ या फीमेल करूँ तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैं 100% देता हूँ और इसलिए लोग मतलब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। 100% नहीं भाई साहब, आप 200% दे रहे हैं आपका, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। आप जॉब भी करते हैं, और ये आपका जो पैशन है, समाज को कुछ अच्छा मैसेज देना है। फैमिली, या सभी फैमिली बैठकर आपका जो रील्स रील्स या देखने का वीडियोस या वो आनंद उठाते हैं, तो आप इस पर काम कर रहे हैं। तो आप जॉब भी करके ये भी पैशन कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं दोनों? हाँ, बहुत मतलब बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मतलब मेरा फुल टाइम जॉब है, आपने कहा ही है। 9:30 टू 5:30 मुझे ड्यूटी करना है, सुबह की 9:30 से इवनिंग को 5:30 तक। और उसके बाद मेरा डांस क्लासेस भी होता है, मैं प्राइवेट ट्यूशन भी करता हूँ, डांस स्कूल भी है। और उसके बाद मैं जब आता हूँ तब मैं बैठ के आधे घंटा या 1 घंटा बैठ के सोचता हूँ कि आज क्या करूँगा। तो मतलब रात को 9 बजे या 10 बजे से मेरा शुरू हो जाता है। और मैं कोई लोग बिलीव नहीं करेगा कि मैं कभी-कभी पूरे रात रील्स के नाम पे लगा रहता हूँ। कभी-कभी 3 बजे, कभी-कभी 4 बजे मैं सोने जाता हूँ। तो मुझे मेंटेन करना है टाइम, और सुबह फिर उठ के फिर ऑफ़िस जाना पड़ता है। तो मैंने मतलब जो मतलब ऐसे ही बैठा हूँ, ऐसे ही सोता हूँ, ये मतलब कुछ आरामदायक काम ना मैंने छोड़ दिया है इसके लिए। तो मुझे जॉब भी मतलब करना है और मतलब समाज के लिए ये भी करना है। जॉब तो मेरा पेट के लिए है, इनकम है, और ये मन के लिए है। ये मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाना, डांस करना। तो मैं ऐसे ही मतलब मेंटेन कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो ये मतलब हो रहा है। दैट्स वंडरफुल सर, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली वेरी नाइस। तो आप दोनों बैलेंस करते हैं, पहले काम करते हैं सुबह से शाम तक, फिर घर आते हैं, आपका डांस क्लासेस भी है, आप एक अच्छे डांसर भी है, कथक डांसर है शायद, है ना? या या तो ये कब कथक। स्टार्ट हुआ? बचपन से सीखते आए हैं कथक डांस, या अभी अभी आपका वो रुचि इसमें आई है? नहीं, मैं बचपन से बहुत मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन सीख नहीं पाया पढ़ाई की वजह से या घर का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की वजह से। लेकिन जब मैंने नौकरी मिली मिली मुझे, तब मैंने सोचा कि इस बार अपने आप के लिए कुछ करूँगा। इसलिए मैंने पहले ही मतलब सैलरी से मैंने वो किया, कथक क्लास जॉइन किया। तो मतलब कथक मैंने नौकरी के बाद सीखा और अभी कर रहा हूँ। या दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, दैट्स रियली वेरी नाइस। हम लोग सब हैरान, मैं तो हैरानी हूँ कि भाई आप इतने अच्छे तरीके से आप जो रोल्स निभाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि भाई दोनों जुड़वे हैं, शायद जुड़वा भाई या समथिंग लाइक दैट, या हाँ, सब। बहुत लोग बोलते हैं या जी, कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम। दैट्स वंडरफुल सॉन्ग। सर, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, जब ये पोस्ट करते हैं आप,
ऑनलाइन जो रील्स पोस्ट करते हैं, तो कमेंट्स भी आते होंगे। सभी या लोग के मन एक तरह नहीं होता, थोड़े लोग कुछ अलग ही सोचते हैं, कुछ अलग ही उनके विचार सोच विचार रहते हैं। तो क्या आपको ऐसे कभी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं? तो अगर आए हैं तो आप उसको किस नजर से देखते हैं, और आप अपने आप को एनकरेज कैसे करते हैं आगे जाने के लिए? इसके अलावा मैं इसको ना देख के बस पॉजिटिविटी को देख के मैं जाऊं, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, बहुत बार हुआ है। निगेटिविटी तो मतलब है। पहले तो बहुत निगेटिव कमेंट्स आते थे कि तू लड़का होके भी लड़की की तरह क्यों वीडियोस बनाता है, और मतलब क्यों, मतलब लड़का है तो लड़के की तरह रह, ऐसा मतलब टू टू मतलब ऐसा ही मतलब बोलते रहते थे। और ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन कमेंट भी मिलते हैं। पहले तो ऑफलाइन भी मतलब मिलता था, जब मैं पास कर रहा था रोड से, मतलब जाता था, तब मतलब बहुत लोग मतलब मुझके देखते हंसते थे। ऐसा लगता था कि मैं ऑकवर्ड फील होता था, मतलब तब भी मैंने नहीं, पहले तो दुख होता था। तब भी मैं घर आके मतलब एक बैठ के मैंने सोचा कि बहुत बार सोचा कि नहीं, मैं तो अच्छा काम कर रहा, क्योंकि अच्छा हो रहा है मुझसे, इसलिए पहले तो अच्छी चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो मतलब व्यतिक्रम है ना, वो काम पहले किसी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होता है। उसके बाद करते करते लोग समझने लगे कि ये बंदा तो कुछ अच्छा कर रहा है। और जब पूरा वर्ल्ड वाइड मुझे अभी इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, अमेरिका, ऐसा जगह, लंदन, ऐसे जगह से मेरा बहुत फॉलोअर्स है, वो भी मतलब कमेंट करते हैं। तभी अभी मतलब सिचुएशन नॉर्मल हो गया है, तभी अभी मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू तो बहुत अच्छे काम कर रहा है, लड़की की ज्यादा ही मतलब एक्सप्रेशन देते हैं। और मैंने कई दिनों से उस सोशल इश्यूज के मतलब ऊपर ही रील्स बनाए हैं। तो वो सोशल इश्यूज के जो रील्स है वो भी लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया है। मतलब हम, हमारे जो लड़कियां है या उसके मतलब जीवन बहुत कष्टकर है, क्योंकि बहुत लोग उसको मतलब पढ़ने नहीं देते हैं। ओनली शादी कर ले, घर बसा ले, ऐसे ऐसे बहुत बोलते हैं। तो मैंने बहुत ऐसे इश्यूज पे सोशल मीडिया पे वीडियोस डाला है, और लोग ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिलता है, पॉजिटिव। तो मैंने उस दिन मतलब रो दिया अपने लाइफ पे, क्योंकि बहुत लोग मतलब इतने मतलब मुझसे मिलने के लिए मतलब इतने बेताब है। ओ सर, आपने मेरे साथ लाइफ में ज्वाइन किया, मतलब इतना मतलब वो लोग खुश होते हैं। तब मैंने अभी सोच रहा हूँ कि या आई एम डूइंग गुड। दैट्स वेरी नाइस सर, ब्रिलियंट, दैट्स वंडरफुल। मुझे ये नहीं मालूम था कि भाई ऑफलाइन भी आपको नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। ये मालूम है कि भाई ऑनलाइन तो करते हैं नेगेटिव कमेंट्स, या तो ऑफलाइन भी ऐसा होता है। तो मुझे सुन के हैरान हूं, क्योंकि लोग देखना है कि भाई कंटेंट क्या है। तो आपका जो कंटेंट है समाज के लिए है, सबकी भलाई के लिए, है ना? या सो दैट्स रियली नाइस दैट यू ओवरकम द चैलेंजेस। आप हिम्मत नहीं हारे। तो या सब एक दिन पहले सभी हंसेंगे, उसके बाद में हमारे साथ देने लगते हैं, क्योंकि हमारा काम जो सही है वो समझने लगेंगे वो लोग। यस सर। तो दैट्स वंडरफुल। तो ये पूछना चाहेंगे आपसे आपके बचपन के बारे में अभी। तो आपके बचपन कैसा था? और क्या नटखट बच्चे थे आप, या शाय वाला बच्चे थे जो खामोश खामोश थे? कैसा था आपका बचपन? या मैं बहुत इंट्रोवर्ट था पहले, बहुत इंट्रोवर्ट। और साय भी था, लेकिन इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा था। और मतलब केवल पढ़ाई पढ़ाई करने वाला जो स्टूडेंट होता है ना, ऐसे ही था। मतलब घर आया, पढ़ाई की, स्कूल गया, आया, पढ़ाई की, ऐसे ट्यूशन वगैरह इसमें ही मतलब लगे रहते थे। पहले मैं आर्ट करता था, फाइन आर्ट्स मेरा, मतलब HSLC में फाइन आर्ट्स मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था। तो मुझे बहुत रुचि है फाइन आर्ट्स में, आर्ट में। तो मैंने बचपन इतना मतलब ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटी नहीं किया। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे आने लगा कि ये तो लाइन बहुत अच्छा है, लोगों को इतना मतलब लोगों से इतना मतलब वो मिलता है, अच्छा अच्छा मतलब वर्ड्स की तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, या तो मुझे ऐसे सुनना बहुत पसंद था पहले से ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा काम कर लूँ। तो थोड़े थोड़े मतलब कॉलेज से, तो उसके बाद नौकरी, और नौकरी के बाद जब मेरे हाथ में कुछ पैसा आया ना, इनकम आया, तो मैंने सोचा नहीं नहीं, अभी तो कुछ करना है, पहले सीखना है, उसके बाद कुछ करूंगा। नहीं तो वरना लोग तो अभी तो केवल वीडियोस देखते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं, और केवल मतलब वो करते हैं।
तो मैंने वैसे नहीं किया, और बहुत लोगों को मैं बोलना भी चाहता हूँ कि ऐसे मत कीजिए, पहले सीख लीजिए अच्छे से, पास 5 इयर्स 10 इयर्स, उसके बाद कुछ काम कीजिए, तभी लोगों लोगों तो आपका आर्ट अच्छे से फैल जाएगा और आपको लोग एक्सेप्ट करने भी लगेंगे। यस सर, दैट्स रियली नाइस, वेरी ट्रू। सही कहा आपने सर। सर हम ये पूछना चाहेंगे, अभी आपका मेकअप जो करते हैं, या फीमेल किरदार के रूप में जो मेकअप डालनी पड़ती है, वो खुद डालते हैं या किसी का मदद लेते हैं? ये कैसा होता है? हम लोग खुद नहीं डाल पाते उतना जो अच्छे, यू ड्रेस अप विद परफेक्शन, तो ये कैसा होता है? क्या मैजिक है इसमें? या मैजिक मतलब मैं खुद ही करता हूँ मैम। एक्चुअली वाओ। आप लोग रील्स पे 7 5 7 6 ऐसा मतलब बहुत किरदार देखे हैं। एक तो मतलब माँ काली का मैंने जो वीडियो बनाया है, उसमें तो मैंने टोटल 15 कैरेक्टर लिया था। तो आप लोग ओनली कैरेक्टर देखते हैं, ऑडियंस लोग कैरेक्टर देखते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में स्पॉट बॉय मैं ही हूँ, स्क्रिप्ट राइटर मैं ही हूँ, डायरेक्टर मैं ही हूँ, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और एडिटर मैं ही हूँ। तो सब मैं करता हूँ। मेरी मम्मी कभी कभी हेल्प करती है, क्योंकि मतलब कभी कभी वो हाथ मतलब ऐसे आता है, कभी कभी जरूरत पड़ता है ना वीडियो में एक दूसरे आदमी को दिखाने के लिए, तो वो मेरी मम्मी है। और एक दो वीडियो में मेरे बहन और मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे मदद किए हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं वीडियो में मैं खुद करता हूँ, और मेकअप भी मैं खुद ही करता हूँ। पहले उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी इंस्टाग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया में जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तब भी अपने वीडियो अपलोड करने के बाद बार बार देखता हूँ कि क्या मतलब यहाँ पे मतलब क्या फॉल्ट रह गया है। उसके बाद मैंने कोशिश करते करते अभी तो वो लोग बोलने लगे कि मैं अभी परफेक्ट फीमेल मेकअप कर पाता हूँ। यस यस, दैट्स रियली ट्रू, वेरी ट्रू। सर, तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, अभी आप तो जॉब कर रहे हैं, आप अगर आपको बड़ा बड़े स्क्रीन में या बड़े पर्दे पर आपको काम करने का मौका मिला, एक्टर बनने का, तो आप इसको कैसे संभालेंगे? जॉब का क्या करेंगे? हाउ विल यू टेक इट फर्दर? या मैम एक्चुअली मुझे तो एक्टर की लाइन पे ही जाना है। तो अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे भगवान ने दिया बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो डेफिनेटली मैं उस मतलब उस प्लेटफॉर्म में जाऊंगा। और मतलब जब को तभी टाटा बाय बाय। जी जी जी, आई अंडरस्टैंड। तो आपको ये पैशन है एक्टिंग के प्रति, और किरदार निभाने का, दैट ब्यूटीफुल वे ऑफ या एक्सप्रेशन, यू लव टू या बी एक्सप्रेसिव या इन द आर्ट फील्ड, आर्ट एंड या मुझे ये आर्ट लाइन बहुत मतलब पसंद है। मतलब जब मैं कर कर रहा हूँ या ड्यूटी कर रहा हूँ, तभी मुझे उतना हैप्पीनेस नहीं फील होता है कि रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे काम करने के बाद भी मुझे मतलब वो थकान सी महसूस नहीं होता है। एनी टाइम मैं हैप्पी फील करता हूँ, मैं वो रील बनाने के समय या डांस करते समय। तो मैं फ्रेश फ्रेश मुझे फील होता है। तो मुझे अभी मतलब यहीं पे ही काम करना है, अगर बिग स्क्रीन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो। मिल जाएगी भैया। हम सब उम्मीद करते हैं कोई अच्छे से प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपसे कांटेक्ट करके आपका जो टैलेंट है, वो हिडन टैलेंट को और यूज कर सकते हैं, और एक अच्छा बिग स्क्रीन में आप आए। हम सब सभी वी विश यू दैट। उम्मीद करते हैं कि वे आप बड़े स्क्रीन में दिखे। यस सर, अभी ये पूछना चाहेंगे आपको, आपका जो कॉस्ट्यूम्स है, या तो आप मेकअप के बारे में आप बोल दिए कि भाई आप खुद कर रहे हैं, तो कॉस्ट्यूम्स जो है, जो ज्वेलरी आप पहनते हैं, तो हर एक सीन में कुछ नया नया दिखने को मिलती है, ये कैसा संभव है? पहले मेरे जो बहन है या फ्रेंड्स है, उससे मतलब मदद लेता था मैं कि आपका ये ज्वेलरी मुझे दे दीजिए, आपका ये। लेकिन अभी मतलब क्या हुआ ना, जब हमारे यहाँ मतलब मेला चलता है ना, मेला या बाजार में जाता हूँ, तभी पहले मुझे उस ज्वेलरी पर ही मतलब वो होता है कि ये ज्वेलरी बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं खरीद लूं। तो अभी मतलब अगर एक शर्ट खरीद लेता हूँ, तभी एक दुकान से ज्वेलरी खरीद लेता हूँ। अभी तो मेरे पास बहुत ज्वेलरी है। उस दिन मैंने फ्रेंड्स को बोला है कि अगर शादी में जाने के लिए कोई अच्छा सा ज्वेलरी लगे तो मुझसे मांग लेना, मेरे पास बहुत ज्वेलरी है। अभी तो मेरा बहुत ज्वेलरी है, मैंने खुद मतलब वो खरीदा है। यस यस, आई हैव सीन द ब्यूटीफुल ज्वेलरी दैट यू वेयर, एंड अब एक डिग्निफाइड लुक रहता है जब आप पहने भी ना, या एक या अच्छा डिग्निटी दिखती है उसमें, जब सही सही ज्वेलरी आप पहनते हैं।
और जो आपका आईज एक्सप्रेशन जो है वो, ऑल ऑफ दैट, दैट्स रियली वंडरफुल, दैट्स रियली ग्रेट। नाउ सर, ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपका कोई अच्छा एक, अगर बाहर देश से आपको कोई बुलाए कि भाई हमारे देश में आके आप हम्म, एक एक्टर बन सकते हैं या हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो हम्म। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? या मैं जरूर चाहूंगा, अगर सही अपॉर्चुनिटी है तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस कला को, इस मतलब आर्ट फॉर्म को मुझे बहुत मतलब दिशाओं दिशाओं में मतलब फैलाना है। क्योंकि मैं अभी अच्छा काम कर रहा हूँ मुझे लगता है, और बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं। तो मतलब इस मतलब गंदगी की समय में मैं अपना ये अच्छा सा कुछ ये कला लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। तभी जो अभी बच्चे हैं, जो अभी न्यू जनरेशन है, उनको लगेगा कि या अच्छे काम करके भी लोग फेमस या कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो लोगों के मन में एक ही है, नहीं जैसे भी हो, या वो मतलब अ, जो भी कुछ करके मुझे तो अभी फेमस होना ही है। तो मतलब लोग मतलब बहुत गंदी तरह से मतलब पेश आते हैं सोशल मीडिया पे। तो मुझे ये मतलब साबित करना है कि डू गुड, यू विल मतलब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जी सर, सो डू गुड एंड यू गेट गुड एज वेल। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका तो फल जरूर मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा, तो आप कर्म कीजिए तो फल का चिंता ना कीजिए, तो फल आई मीन उसका रिजल्ट्स आ जाएंगे एट द राइट टाइम। सो आपका वक्त आ चुका या है मैं आप। एक यस सर, बोलिए आप। जी एक बात बोलना चाहूंगा जी जी। कि मतलब हाँ, बहुत लोग मतलब ऐसे कुछ करते हैं कि लोग को ये पसंद आएगा कि नहीं, ठीक है। बहुत लोग कुछ करने से पहले ऐसे मतलब सोचते हैं। लेकिन मेरा सोच ऐसा नहीं नहीं था, और अभी भी नहीं है, कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोगों को पसंद आना ही चाहिए। मेरा सोच ऐसा है, क्यों लोग पसंद नहीं करेंगे? अगर मैं उस काम को 100% दूंगा, डेडिकेट विद फुल डेडिकेशन, देन डेफिनेटली वो काम लोगों तक पहुंचा जाएगा और लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। मैं हम लोग 100% हार्ड वर्क नहीं करते हैं, इसलिए मतलब कभी रुक जाते हैं। तो 100-200% हार्ड वर्क करो तो डेफिनेटली आपको आपका काम लोगों को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो डोंट थिंक अबाउट लोग पसंद करेंगे कि नहीं, थिंक अबाउट कि मैं कैसे करता। उसके बाद लोग डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अच्छे काम में मुझे बिलीव है, मैं बिलीव करता हूँ कि अच्छे काम में भगवान साथ रहते हैं। जी 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 सर। सर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। अभी आपको देख के दूसरे क्रिएटर्स, आप मेल और फीमेल का किरदार आप प्ले कर रहे हो, तो नेगेटिव कमेंट्स को आप यू नो केयर नॉट कर चुके हैं, और या आज नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, तो पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको देखकर बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स भी अपना मन या सोच विचार को बदल के वो भी आगे आके वो भी कंटेंट क्रिएट करने लगे हैं। क्या ये सच है सर? आपको देखकर वो लोग भी सीखे हैं कि भाई अगर कन जीत सर कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? या मैम, डेफिनेटली बहुत लोग ऐसे वीडियो बना के मुझे भेजते हैं कि दादा प्लीज देख लेना कि ये अच्छा हुआ कि नहीं। तो मैं कहता हूँ हाँ, तुम ऐसा ऐसा करो और अच्छा अच्छा होगा। ये तो डेफिनेटली अच्छा ही है, लेकिन और कुछ ऐसे ऐसे डाल के और मैं मेहनत करके और अच्छा करो। क्योंकि जब लोग मेरे जो आर्ट फॉर्म है वो एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अ, अच्छे को हर कोई लोग एक्सेप्ट जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये मतलब बिटर ट्रूथ है कि मतलब अभी तो मतलब लोगों को मतलब सिर्फ मतलब वो चाहिए, गिमिक चाहिए। वो मतलब जो मतलब जिस रास्ते से आपको इजीली सक्सेस मिलता है, मतलब सक्सेस मतलब क्या, मतलब फॉलोअर्स ज्यादा या व्यूअर्स ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो लोग उसी मतलब तरीके में जाते हैं, उसी जर्नी में जाते हैं। तो अभी बहुत बच्चा बच्चा या बहुत लोग मेरे तरह फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज को बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, और कि मैंने कुछ किया है अभी तो। वाह, दैट्स रियली नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल सर। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आपके ऑफिस में जहां पर आप काम करते हैं, वो लोग आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं आप? व्हाट डू दे टेल? या मैम, पहले ऑफिस में भी, क्योंकि मेरा जो पोस्ट है वो मतलब एक मतलब ऑफिसर रैंक का ही पोस्ट है।
तो मतलब लोग पहले तो मतलब बोलते थे कि आप तो एक अच्छे मतलब पोजीशन पे हो, तो ये करने से आपका वो डिग्निटी लो नहीं हो जाएगा क्या? बहुत लोग बोलते थे मुझे। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने तो कुछ गंदा या बुरा नहीं किया है। ये तो अच्छा कर रहा हूँ, तो देख लेना जल्दी-जल्दी कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तब तुम खुद बोलोगे कि नहीं सर, आपको तो ये करना ही करना है, हर रोज़ ये करना ही करना है। तो अभी ऑफ़िस में पहले वही मतलब सिचुएशन था, तो अभी तो मतलब बहुत लोग वाओ! यू आर नाउ सेलिब्रिटी, वाओ! ऐसे-ऐसे मतलब बहुत प्रेज़ करते हैं यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस टू नो दैट पीपल सपोर्ट यू, सपोर्ट कर रहे हैं, आपका अच्छा काम यू नो प्रोत्साहन कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ाने में साथ दे रहे हैं भी अच्छे बातों के साथ। आपको ऐसा कुछ याद है आपके बचपन के बारे में एक छोटा-सा सचमुच जो किस्सा घटा आपके साथ? या एनी या इंसिडेंट यू रिमेंबर? या स्कूल छोड़ के भाग के आए या मम्मी से डाँट-वाट खा लिया आप या अपनी बहन से लड़ाई हुआ? ऐसा कुछ खास इंसिडेंट याद है? शेयर कर सकेंगे आप? या मैंने तो बोला कि मतलब मैं मतलब स्टूडेंट्स अच्छा था। तो एक 7 तब स्टैंडर्ड में था मैं। तब मुझे इंग्लिश इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स मिले थे। लाइफ में उतना कम मार्क्स मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे मिल मिल 100 आउट ऑफ 100 मुझे 37 मिल गया था, 37। तो मैंने मम्मी मुझे बार-बार पूछ रही थी कि आपका इंग्लिश का मतलब आंसर शीट दिया? तो मैंने कहा नहीं, अरे क्यों सबका सब्जेक्ट का आंसर शीट दे दिया लेकिन इंग्लिश का नहीं। मैंने बोला नहीं, बहुत दिन तक मम्मी मम्मी से छुपाया। उसके बाद मुझे फिर मतलब फ़ील हुआ कि नहीं, ये तो बहुत बहुत बुरी बात है। तो मैंने एक दिन फिर रोते हुए मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मैंने तो बुरा किया है, 37 मुझे मिला। तो मम्मी ने मुझे एकदम हग किया, तो बोला नहीं बच्चा, ऐसे नहीं करना। मैं तुमको फेल भी करोगे तभी मैं तुमको नहीं डाँटूँगी, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा मत करना। अगर 0 भी मिले तो तभी मैं तुमको नहीं डाँटूँगी, तुमको नहीं मारूँगी, लेकिन ऐसा फिर मत करना। तो तभी तक मैंने आज तक, तभी से आज तक किस एक भी मतलब झूठ मम्मी से नहीं बोला है। तो अनुशासित या मतलब जी लाइफ में जब भी मतलब कुछ आता है ना, तो पहले मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी मेरे मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, जो भी हो मतलब जो भी हो। मम्मी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देती है और देती आई है। तो अभी मेरे मम्मी ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैं मम्मी को सब बोलता हूँ कि ऑफ़िस में ये हुआ कि लड़के लोग ऐसे बोलते हैं मम्मी, लड़के लोग मुझे ऐसे थर्ड जेंडर वाले बोलते हैं, लड़की बोलते हैं, मम्मी को सब बोलता हूँ। तो मम्मी मुझे एकदम हग करके आज भी मम्मी हग करती है मुझे और बोलती है कि नहीं बाबा, दुःख मत करो, यू आर डूइंग गुड, मैं आपके साथ हूँ। तो अच्छा कर रहे हो, मैं आपके मदद करता हूँ ना वीडियोज़ बनाने में। तो आप ऐसा मत कहिए, दुखी मत होइए। अ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम योर सपोर्टर, सो करते रहिए। तो इतना मतलब सपोर्ट मिलता है। बहुत लोग फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत बहुत लोगों को मारते हैं। मुझे ऐसे भी मतलब लड़का मिल गया है जो ये करना चाहता है। लेकिन उसको उसका फैमिली वाला उतना मतलब सपोर्ट नहीं करता है, डाँटते हैं, मारते हैं और मतलब बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन मेरा फैमिली जो है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जब मैं साड़ी पहनता हूँ ना, तो मम्मी ही मुझे साड़ी पहन के देता है। तो बोलती है कि ये अच्छा नहीं लगा, ये लुक तुमको अच्छा नहीं लगा, ये करो, वो करो। मम्मी खुद मतलब डिसीज़न देती है। तो इसके जो जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, पहला मेरा ऑडियंस है मेरी मम्मी। मम्मी को दिखा देता हूँ कि मम्मी ऐसा-ऐसा किया, अच्छा हुआ। तो मम्मी नहीं बाबा ये गलत हुआ। तो मैंने फिर शूट करके वो मतलब कर लेता हूँ। तो मेरी मम्मी ही अभी मेरा बहुत सपोर्ट करती है। तो आपको सबसे बड़ा तोहफ़ा मिल गया भगवान जी से, या आपकी मम्मी। या बहुत सारे लोगों को नहीं है ये यू नो सुख, माँ का जो या साथ देना। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, हमने सुना भी। या अगर आपकी मम्मी आपका बेस्ट फ्रेंड है तो दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट इन द वर्ल्ड। आपको या कोई नहीं हरा सकता अगर आपकी माँ आपके साथ हो तो। या कोई भी नहीं हरा सकता। तब जब भी मुझे ऑफ़िस में या रास्ते में कुछ लोग बोलते थे पहले, तो सब मैं मेरी मम्मी को बता देता था कि मम्मी ऐसे-ऐसे बोला। तो मम्मी केवल मुझे हग करती है और बोलती है कि नो,
तुमको सिर्फ करना है, बाकी रिजल्ट कैसा होगा वो तो ऊपर वाला के हाथ में है। तो प्लीज करते रहिए। अगर मेरा हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और आपको पता है, जब मैं रात को 2-3 बजे तक जागते हुए रील्स बनाता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे साथ मम्मी वहाँ सोफे पे बैठी रहती है। उसका एज है अभी 59, तभी वो बैठी रहती है। तो आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी मम्मी मिला है। मैं दुआ करूंगा कि सबको मतलब ऐसे ही अपना फैमिली सपोर्ट मिले और हर कोई आगे बढ़े। मुझसे भी ज्यादा बहुत टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड बच्चा है, टैलेंटेड मेल है, टैलेंटेड फीमेल है, लेकिन अपने फैमिली की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी का मतलब हस्बैंड ने उसको रुका दिया है, किसी का मदर ने, किसी का फादर ने, किसी का बहन ने तो बहुत मतलब उसको उसके साथ रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हैं। तो मैंने बहुत ऐसा मतलब सुना है स्टोरीज। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस माँ बाप को, उस फैमिली को, प्लीज सपोर्ट योर चाइल्ड। योर चाइल्ड इज वेरी प्रीसियस, भगवान के देन है वो। एक दिन आपका नाम जरूर मतलब रोशन करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट करते रहिए। Yes, dear. You really shared that so beautifully. That's really very nice. I'm really impressed the way you speak. आप जब बात करते हो ना तो और भी सुनने का दिल बोलता है। इतने अच्छे तरीके से आप बात करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, किसी को हर्ट करके एक बात भी आपने नहीं कहा, किसी के बारे में बुरा कभी नहीं बोला। दैट्स रियली नाइस। सर, अभी अभी आगे आपका जो प्लान, फ्यूचर क्या प्लान। प्लान है वो क्या है, बता सकते हैं या वो एक सीक्रेट है हमारे लिए? हाँ मतलब मैं तो अभी काम कर रहा हूँ, पता नहीं लाइफ कितने दूर तक जाएगा, लेकिन मुझे बड़े प्लेटफॉर्म में आना मतलब एक मतलब वो है मतलब एक एम है ना, प्लान है कि कब मुझे ऐसा मौका मिल जाए, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि मतलब छोटे छोटे काम करने से भी लोग बड़ा हो जाते हैं, उसको बड़े से अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मतलब बड़े बड़े स्टार से ही मतलब कनेक्शन रहना जरूरी है, लेकिन नहीं, आप हर लगन के साथ विथ 100% डेडिकेशन के साथ एक काम कीजिए, डेफिनेटली वो रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि क्योंकि एक डेस्टिनी है ना, वो डेस्टिनी देख रही है, सारा यूनिवर्स देख रहा है आपको कि ये बंदा कितना हार्ड वर्क करता है, कितना कैसे लगन से करता है, कितना अच्छे तरीके से करता है। तो डेफिनेटली या समय लगेगा, 1-2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा ही होगा। लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन दिस। Wow, that's wonderful. It's a beautiful message. It's a beautiful message. The universe will connect with you for your hard work. So keep continuing the hard work. सर, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे चिकन अच्छा लगता है, चिकन। बनाने भी आता है? नहीं नहीं मैम, कुकिंग नहीं नहीं आती बनाना। है? नहीं नहीं, पहले आता था जब मैं मतलब जॉब के लिए मतलब घर से बाहर था, तब आता था। अभी तो मतलब 5 साल से घर में ही हूँ, अभी मतलब कुकिंग में मम्मी को हेल्प नहीं कर पाता हूँ, तो अभी तो नहीं होगा मुझसे। जी। आपका मातृभाषा कौन सा है? असमीज, आई एम एन असमीज गाय या। या, आप अभी असम में एक अच्छा सा मैसेज सभी को दे दीजिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर हम आपसे पूछे आसामीज में एक अच्छा मैसेज दे दीजिए तो दीजिए। यू जस्ट गिव ब्यूटीफुल। लैंग्वेज असमीज में। यस प्लीज। ओके, तो अभी मतलब हमारा बिहू आ रहा है, बिहू। हाँ, जो हमारा नेशनल जो फेस्टिवल है वो मतलब बिहू आ रहा है। तो मैं हर आसामीज लोगों को, हर सभी को बिहू का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं সকলো অসমবাসী ৰাইজকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো। আপোনালোকে ভালে থাকক, আপোনালোকে হাঁহি থাকক। मैंने बोला कि आप सब लोग स्माइल करते रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। ये बिहू के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मैं सभी सभी लोगों को। वाह, दैट्स रियली सो ब्यूटीफुल, दैट्स रियली वेरी नाइस। सर, आसाम में सबसे अच्छा चीज आपको क्या लगता है? व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट आसाम? या अबाउट असम, फूड, ट्रेडिशनल फूड बहुत अच्छा लगता है मुझे। या और आसामीज का जो ट्रेडिशनल फूड है वो मतलब अभी तो वर्ल्ड वाइड है, बहुत लोग पसंद करने लगे हैं। यूट्यूब पे जब मैं वीडियो देखता हूँ तो बहुत लोग मतलब आपको मतलब आसामीज मतलब
ट्रेडिशनल जो फूड है ना, उसके बारे में वीडियो तो बहुत मिलेगा कि मैंने असम गया, मैंने ये किया वो किया। तो मुझे लगता है कि असमीज ट्रेडिशनल फूड में बहुत मतलब जबरदस्त एक बात है, जो मतलब पूरा वर्ल्ड को मतलब जुड़ के रख सकते हैं थ्रू वो मतलब फूड। ओके, दैट्स वंडरफुल सर, दैट्स वंडरफुल। अभी टूरिज्म को लेके अभी दूसरे लोग जो दूसरे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, देन डिफरेंट प्लेसेस, अगर वो आसाम को टूरिस्ट की तरह आना चाहेंगे, टूर मारना, जस्ट गो लाइक ऑन अ टूर, तो या आप व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द टूरिज्म इंडस्ट्री इन असम? या आसाम में अभी गवर्नमेंट बहुत मतलब टूरिज्म को मतलब डेवलप करने के लिए बहुत मतलब काम कर रहे हैं, और अभी पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। काजीरंगा एक नेशनल मानस एक नेशनल प्लेस है, जहाँ मतलब काजीरंगा तो बहुत अभी है, बहुत दूर दूर से लोग काजीरंगा देखने के लिए आते हैं। और कामाख्या टेम्पल, आपने तो सुना ही है, कामाख्या टेम्पल में बहुत बहुत बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी आते रहते हैं। तो हमारे असम में नॉर्थ ईस्ट में बहुत मतलब बहुत अच्छे से जगह है, जो नेचुरल बहुत मतलब सुंदर लगता है। अगर कोई लोग असम में आना चाहे तो डेफिनेटली आ जाइए, वेलकम टू असम। क्योंकि एक बार आप असम आए तो डेफिनेटली आपको जाने का मन नहीं करेगा कि इसका नेचुरल ब्यूटी इतना ज्यादा अच्छा है। जी जी जी, दैट्स रियली नाइस टू नो, दैट्स वंडरफुल। तो जरूर आएंगे हम सब एक बार, विल विजिट असम बिकॉज वी हैवंट विजिटेड असम। आप भी आइए ना, बहुत अच्छा लगेगा, या बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जी भाई साहब, आप क्या आसाम को कभी छोड़ के कि कोई दूसरे स्टेट में आपने ट्रैवल करके देखा है कि वहां पर भी कैसा है जिंदगी? डिड यू ट्रैवल आउट ऑफ असम? नो मैम, अभी तक तो मैंने नहीं किया। अगर आपको मौका मिला तो कौन सा स्टेट देखना चाहेंगे आप? मैं कश्मीर, कश्मीर। कश्मीर, वाह, या दैट्स नाइस। जम्मू। यस यस, दैट्स वंडरफुल सर, दैट्स रियली राइट। हमने भी नहीं देखा कश्मीर को, हम भी देखना चाहेंगे। So that would be really nice, Kashmir. And I would love to even visit Assam as well. Many of you, my dear friends, you could visit Assam, you could visit Kashmir. It's located in India. If you're from abroad viewing this, you could really visit these two beautiful places. There are several beautiful places in India, and we respect tourists, and we would love you to visit our country, India. Yes. Sir, एक और एक क्वेश्चन है, जो मिठाई मिलती है वहां पर स्वीट, आसाम का सबसे फेमस स्वीट कौन सा है? आसाम का मतलब फेमस स्वीट मतलब मैम रसगुल्ला है, रसगुल्ला। रसगुल्ला। या Okay. मतलब एकदम हम लोग, अगर हमारा कुछ भी मतलब अच्छा काम हो, शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, या कुछ भी अच्छा काम हो, हम लोग पहले ही बोलते हैं कि मिठाई खिलाना पड़ेगा, रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा। या तो ये एक कॉमन कॉमन मतलब मिठाई है, और हर कोई लोग खाते हैं, व्हाइट वाला जो मतलब रसगुल्ला है। सर, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, तो हम सभी सभी की जिंदगी में स्ट्रेस होता है, हाँ मैम। तो अगर आप स्ट्रेस सह रहे हैं तो उससे बाहर कैसे आते हैं? आपका इजी टेक्निक क्या है टू ओवरकम स्ट्रेस? या डांस, जस्ट डांस। मैं जब भी हैप्पी फील करता हूँ, डांस करता हूँ। जब भी मतलब थकान सी महसूस करता हूँ, डांस करता हूँ। जब भी मैं दुख महसूस करता हूँ, तब मैं डांस करता हूँ। तो डांस इज माई स्ट्रेस रिलीवर। और मैं हेडफोन लगा के सॉफ्ट म्यूजिक सुनता हूँ, ऐसे गजल हो, या मतलब प्रेयर्स हो, या भगवान रिलेटेड कुछ मतलब ऐसे सुनता हूँ, तभी मेरा स्ट्रेस पूरा गायब हो जाता है। और कभी कभी मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। Wow, मेडिटेशन। that's beautiful. So dance and meditation, right? Yes, sir. सर, अभी आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आपका जो काम देखकर छोटे जनरेशन, द यंगर जनरेशन, या तो सब लोग आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग। या अब उम्र का लिए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको का काम को रिस्पेक्ट नहीं करने वाले, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। अभी सब रिस्पेक्ट करने लगे हैं क्योंकि आप सनातन धर्म को लेकर एक अच्छा सोशल मैसेज आप शेयर कर रहे हैं। तो दैट इज रियली वंडरफुल। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आप या ये समाज के लिए, यंगर जनरेशन के लिए किस तरह के मैसेज आप देना चाह रहे हैं? हाँ, यंगर जनरेशन के मतलब ऐसा कहूँगा कि मतलब कभी भी सोसाइटी के लिए हेजिटेट फील मत करो कि ये काम, ये इस वक्त में, इस उम्र में अगर मैं
ये स्टार्ट करने लगा तो लोग क्या सोचेंगे। डोंट थिंक लाइक दैट। लोग तो बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन आपको ऐसा मतलब सोचना नहीं है। अगर आप ही लोगों के बारे में सोचेंगे तो लोग मतलब आपका जो शेयर है वो कौन सोचेगा। तो डेफिनेटली डोंट थिंक अबाउट सोसाइटी, क्योंकि आपको अच्छा करना है, या हमको जो सोसाइटी को हार्म नहीं है वो करना है। तो और बहुत मुझे डीएम मिलते हैं कि सर आपको देख के मुझे अभी डांस करने का मन मन है, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में मैं डांस करती थी, लेकिन अभी तो मेरा शादी हो गई, तो मैं कैसे करूं। नहीं, शादी के बाद भी मतलब अपना या ये करियर स्टार्ट हो सकता है। डांस हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो, जो भी हो, लेकिन आपके मन में जो है वो आप करिए, क्योंकि आपके अलावा आपके जो हॉबीज है वो पैशन है वो किसी दूसरे को फील नहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही जानते हैं ना कि आपके अंदर कौन सा जुनून है। तो करिए, अच्छा काम के करिए। मैंने नहीं बोला कि आप कुछ बुरा काम करने के मन है तो आप बुरा करते रहिए, ऐसा नहीं बोला। अच्छा काम कीजिए जो सोसाइटी को हार्म नहीं करेगा, जो अश्लीलता नहीं है। तो ऐसा कुछ अच्छा काम करने का मन है तो डेफिनेटली जिस उम्र में हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, आप कर सकते हैं। और न्यू जनरेशन तो अभी मतलब उसके बाद बहुत एनर्जी है, तो उसको तो सोचना ही नहीं है कि समाज क्या सोचेगा। मैं अगर लड़का हूँ तो लड़की बन गया, मैं अगर लड़की हूँ तो लड़का बन के वीडियो बनागा, तो समाज कैसे सोचेगा। नहीं, समाज अच्छा ही सोचेगा अगर आप खुद अच्छे से सोचोगे। जी जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बड़ी अच्छी सी मैसेज आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। सर, आपको कनकन जी के बारे में खुद में आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लव अबाउट योर सेल्फ? मैं मुझे दूसरों को हार्ट करना एकदम मतलब पसंद नहीं है। अगर किसी को मैंने ऑफिस इंटरेस्ट के लिए, ऑफिस काम के लिए किसी को बुरा बोल भी दिया और मतलब गाली गलौज कर भी दिया, तब भी मैं घर पे आके सोचता हूँ कि क्यों क्यों मैंने बोला ऐसा। नहीं बोलने से भी हो जाता। तो मुझे ये बात बहुत हर्ट करता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कभी किसी का मतलब इसका ये काम छीन के मेरे तरफ कर लो और या सेल्फिश बन के कुछ करो, ऐसा मैंने कभी तक नहीं किया। अभी तक एक भी काम नहीं किया, और ये बात मुझे अच्छा लगता है कि मैं मुझसे कोई लोग हर्ट नहीं है, मतलब जानबूझ के। अब अगर अनजाने में हुआ तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जानबूझ के मैंने अभी तक किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की है। और अगर हर्ट करूंगा तब भी मतलब घर आके मुझे इतना मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, डिप्रेस होता हूँ कि ये भगवान मैंने क्या कर दिया। तो बहुत मतलब ये मतलब सच मुझे बुरा लगता जी सर, जी सर, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। आपका जो सचमुच का जो अंदर जो एक पुकार है, वो है। इक्वालिटी, जस्टिस, सभी को एक नजरिए से देखना, सभी का सम्मान करना, किसी को हर्ट नहीं करना, उस कैटेगरी के हैं। थोड़े लोग बहुत सेल्फिश रहते हैं। या आप अगर कुछ बोल भी दिए तो हर्ट हो जाते हैं अंदर, मैंने क्यों बोला ऐसा। या तो या ये अच्छा गुण है। ज्यादा लोग नहीं सोचते अच्छा हुआ मैंने डांट दिया, गाली दिया, मार या भी दिया, या डांट दिया। या या तो आप थोड़े से अलग हैं। दैट थोड़े बहुत कम लोग हैं आपकी तरह जो सोचते हैं कि भाई दूसरों को तकलीफ ना दे, दूसरों को हर्ट ना करे हमारे बातों से या हमारे एक्टिविटी से। इट कुड बी एनीथिंग। नाउ सर, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? फेवरेट मूवी देवदास मैम, बहुत अच्छा लगता है वाह। देवदास। मुझे ऐसे क्लासिकल टाइप मतलब मूवी बहुत अच्छा लगता है। देवदास, वो मतलब गंगूबाई कठुआरी, ये एक फिल्म था ना आलिया भट्ट का, वो मतलब मूवी बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, दैट्स रियली नाइस। नाउ सर, आपके साथ छोटा सा क्विज खेल सकते हैं या क्या? या ठीक है। अभी प्लैनेट्स जो है ना, डू यू नो द प्लैनेट्स? या Mercury, Venus, Jupiter, and all of that. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, but all of the planets. इन सभी planets में से सबसे बड़ा वाला planet कौन सा है? मैम बृहस्पति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति। I don't know that in Hindi. या Okay, आई थिंक बृहस्पति। बृहस्पति, या इंग्लिश में मुझे अभी तक अभी वो मतलब याद नहीं आ रहा है। जी जी जी, we'll find it out. Okay, अभी नहीं मैम, एक काम कीजिए आप नौ नौ ग्रह को मतलब इंग्लिश में बोलिए, मैं बता दूंगा। बोलिए। मर्क्यूरी,
Venus, Earth, Mars, Jupiter. जुपिटर. Jupiter. Wonderful, wonderful. That's really nice. Great. So we both won. One point for you. That's nice. अभी प्रेम को लेके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है भारत में, अभी नहीं, बहुत पहले, मेनी इयर्स अगो, बहुत सालों पहले। तो वो स्ट्रक्चर का नाम कौन सा है? एन ऑप्शन. Option, you can say Red Fort, you can say Charminar, you can say Taj Mahal. ताजमहल. Yeah, okay, great. That's wonderful. Yes, sir. अभी हम तेलंगाना को लेंगे। तेलंगाना का कैपिटल कौन सा है? तेलंगाना का कैपिटल. नो. I give you the options, okay? या या. तेलंगाना का कैपिटल मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, that is Chennai. बेंगलोर मैम. Second choice? Like मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई। आप तो बैंगलोर बोल दिए, वो गलत है, तो इन तीनों में कौन सा चुनेंगे आप? हैदराबाद. Yes, it's Hyderabad. Yes, Telangana, the capital city is Hyderabad. That's wonderful. तो आसाम का कैपिटल दिसपुर है ना? If I'm या not mistaken. दिस. Yes. Sir, अभी ये पूछना चाहेंगे आपसे, like, you know, जो space, you know what is the space? Like Yeah. up. तो एक जमाने पहला रशिया में एक डॉग एक कुत्ता को वहां पर भेजा था, या तो उस डॉग का नाम आप जानते हैं? I'll give you 4 options, okay? Yeah. Yes. They sent it up in to the space, the first animal to enter into space, the first dog. So one is like Jimmy, Johnny, Laika, Tom. Oh, great. Wonderful. Very smart. Okay. Great. That is very, very nice. Beautiful. So you're a good reader as well. Very good in GK as well. That's really nice. The first Indian Prime Minister? Jawaharlal Nehru. Yeah, that's really nice. The female Prime Minister? First Indira Indian Gandhi. female Prime Minister? Indira Gandhi. Wow, great. That's wonderful. So you're awesome. That's good. बस ऐसे आपको मैं बोला भी नहीं स्टार्ट में, मैंने कहा भी नहीं कि भाई ऐसा होगा. It was just on that. You have scored full marks. That's really nice. You made wonderful guesses as well. That's really good. Now, sir, we go on to the next part, the next segment. That is, अगर इस दुनिया में बदलाव लाना है, कहाँ पर बदलाव लाना है? कौन सी जगह आपको लगता है कि यहाँ पर बदलाव होनी है? कौन सी जगह? मतलब प्लेस या? लेट मी बी क्लियर, मैं उसको स्पष्ट करूंगी अब। तो हम समाज में देखते हैं अलग अलग चीज जो भी होता है, सामने देखते हैं पॉलिटिकल फाइट्स, रिलीजियस फाइट्स, या परिवार में लड़ाई झगड़ा, भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेकर, या फ्रेंड्स के बीच में, तो लड़ाई होती रहती, अनबन होती रहती है। तो कहाँ बदलाव आना है? मुझे मैम पॉलिटिकल लीडर्स में थोड़ा मतलब बदलाव लाना है, क्योंकि हम जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है, 10th प्लस, 11th प्लस, 12th प्लस, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा मतलब। लेकिन लीडरशिप के लिए जो पॉलिटिकल लीडर है उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ओनली एज का क्वालिफिकेशन है, और आपका इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ है। लेकिन पढ़ाई के मामले में या मतलब एजुकेशन के जो क्वालिफिकेशन है वो एकदम जीरो है हमारे यहाँ। लेकिन दूसरे जगह में अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए तो उसको एजुकेशन क्वालिफाई मिनिमम एक होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर अगर वो 5th क्लास भी मतलब फेल हुआ था तभी उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया दिया जाएगा। तो ऐसे तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नहीं होगा। अगर आप खुद ही एजुकेशन किया है, एजुकेशन का कैसे आगे बढ़ाना है, कैसा स्ट्रेटजी लेके अगर बच्चे लोग को ऐसे एजुकेशन में दिया जाएगा, अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप क्या खाक एजुकेशन मिनिस्टर बनोगे? तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी लाना है एजुकेशन, या बहुत मतलब कुछ भाग में जो आप स्ट्रेटजी करके ही वो मतलब स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि
पॉलिटिकल लीडर को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जी जी सर, जी सर। सर, आपको गुस्सा किस बात पर आती है? जब लोग मतलब ऐसे ही कुछ बोल देते हैं विदाउट लॉजिक, बहुत बहुत मैं एंग्री फील करता होता है मुझे, मतलब लॉजिक बहुत मतलब पसंद है। अगर ये है तो क्या है, तो मैंने कहा कि आप फोन क्यों नहीं पिकअप कर रहे थे, तो अगर उसने बोला कि नहीं मैंने तो ऐसा ऐसा करके मुझे तो समय नहीं मिला, तो मुझे मैं बोलूंगा कि आपके पास इतना भी समय नहीं है आपके फोन पिकअप करने में। तो मुझे इतना ये सब मतलब वो अनलॉजिकल थिंग मुझे अच्छा नहीं लगता है, तभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। जी सर, जी सर। आपको किसी बात का डर लगता है? हाँ, अभी तो मेरे डर, अभी जो डर है वो मेरे मम्मी की हेल्थ का डर है थोड़ा, क्योंकि मेरा मम्मी ही मेरे पिलर है। तो मुझे अभी मैं भगवान को तो डरता ही हूँ, उसके सिवा किसी और को नहीं डरता हूँ, लेकिन अभी ये बात मुझे लगता है कि मम्मी का हेल्थ अभी थोड़ा और मतलब अच्छा होना होना जरूरी है मेरे लिए। या अभी मैं इधर सेल्फिश हो गया हूँ, क्योंकि मुझे अगर रहना है तो मम्मी के साथ ही मुझे रहना है। तो अगर मम्मी अच्छे से रहेगी तो मैं ही रहूंगा। तो मुझे अभी मम्मी की सेहत की मुझे बहुत चिंता होता है और डर भी लगता है कभी कभी। जी जी, दैट्स अ वंडरफुल। आप एक अच्छे से वंडरफुल चाइल्ड। सभी माँ आपकी तरह एक चाइल्ड है। दे विल लव टू हैव अ चाइल्ड लाइक यू। एवरी मदर अटैच टू द मदर, टू टेक केयर ऑफ द मदर। माँ के बारे में सोचना, उनका हेल्थ के बारे में सोचना, उनके साथ रहने का सोचना, दैट्स वंडरफुल। बहुत कम लोग ऐसे हैं बच्चे जो आपके विचार जैसे आप सोचते हैं वैसा वो सोचते हैं। अलग जाना चाहते हैं या गाली या गलौज कर देते हैं, डांटते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, पैसे वैसे लेके चले जाते हैं, फिर डांटते हैं। ऐसा सब हुआ है, हो रहा है भी। आप लेकिन एक मैं अच्छे से एग्जाम्पल हो, दैट्स वंडरफुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मम्मी के साथ झगड़ा नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। हर कोई किसी के घर में झगड़ा होता है, लेकिन वो मतलब मैं इस घर से चला जाऊंगा, आप चले जाइए, मैं आपके आपसे आपके आपके साथ नहीं रहूंगा, ऐसा मतलब ये नहीं है। थोड़ा झगड़ा हुआ 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद फिर हाग हुआ, फिर मतलब नॉर्मल हो गया। अच्छा, जब लड़ाई होती है मम्मी और आपके बीच में तो पहला कौन मेकअप करते हैं? बातें कौन करते हैं फर्स्ट? मैं ओके, दैट्स सो स्वीट। दैट्स रियली नाइस। आपकी सबसे फेवरेट कलर कौन सा है भाई साहब? येलो। येलो, दैट्स रियली नाइस। एंड योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक, हर सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक मतलब मुझे पसंद है। अगर आपको एक proverb या कहावत सुनाइए, if I put a request, what is it that you'd love to share? मैंने पहले भी कहा, when there is will there is way। मैं बहुत बिलीव करता हूँ ये। जब तक आपका मन है, डेफिनेटली रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। अगर आपने 1% भी डाउट हुआ कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, ये हो सकेगा नहीं, तभी आपका हर मतलब दरवाजा क्लोज हो जाएगा। इसलिए मतलब 100% सोचिए कि मेरा ये यहाँ पे मन है, तो डेफिनेटली वहां पे एक रास्ता होगा ही होगा। तो when there is will there is way। जी 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 सर। सर, अभी आपको छोटा सा पेट पसंद है, एक डॉग या या कैट या है अपने पास घर में? नहीं मैंने बहुत मतलब मम्मी से बोला कि मम्मी एक पेट ले लो, लेकिन मम्मी ने मतलब बोलता है कि तुमको देखना पड़ेगा, मैं तो नहीं देखूंगी। क्योंकि मम्मी मतलब मम्मी भी मतलब जॉब करते हैं, एक छोटा मोटा जॉब जॉब करते हैं। और घर मेरे फादर नहीं है ना, तो घर का सब कुछ वही संभालती है। मैं तो लड़का होके भी मतलब मार्केटिंग नहीं करता हूँ, सब मम्मी करते हैं। तो मम्मी को बहुत काम होते हैं, इसलिए मम्मी बोलते हैं नहीं मुझे तो नहीं संभाला जाएगा, तुम अगर संभाल पाते हो तो मतलब खरीद लो, ऐसे बोलते। तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा मन बहुत है। क्या लेना है, वो एक कैट या डॉग? व्हाट डू यू वांट? डॉग है, डॉग एक पप्पी सोता था पप्पी या। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल। यस सर। सर, अगर आपको भगवान जी मिले, सामने प्रकट हुए, या यूनिवर्सल एनर्जी भी कहते हैं थोड़े लोग, प्रकट हो गया सामने और कहे कि
आपको हम एक तोहफा दे रहे हैं, एक वर, एक महाशक्ति, और आपको चुनने का मौका भी देते हैं। आप आपके पसंद का महाशक्ति चुन लो, हम आपको दे देंगे द सुपर पावर। तो व्हाट सुपर पावर यूड लव टू हैव? मैम मैं एकदम सच बोलूंगा, अगर भगवान मुझे मिल गया तो मैं यही मतलब अ, उनसे प्रे करूंगा कि मुझे ऐसा शक्ति दे कि मैं जितना भी निगेटिविटी मेरे लाइफ में आए, जितना भी मतलब स्ट्रगल आए, तब भी मैं हारूं ना। मेरे मन कभी भी मतलब हार नहीं जाना है मुझे। तो अगर भगवान जी आपको अगर वरदान देना है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि हर कोई सिचुएशन में आप आज जितना स्ट्रांग है ऐसे ही मेंटली स्ट्रांग हो। तो मुझे फिजिकली स्ट्रांग से मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत पसंद है, और मैं इसलिए मतलब अ, भगवान से यही मांगू। एकदम सही मतलब सच कर रहा हूँ कि मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना है। यस, और ये अच्छी बात आपने कहा। मैं भी ऐसी सोचती हूँ। मैं, अगर मुझे कुछ वर चाहिए तो इतना शक्ति दो मुझे, तो जो भी सामने आए उसका मैं फेस करूं। मुझे इतना या मनोबल, mental strength, मनोबल या yeah. Give me that strength. I really like the way you put that. So that is the best gift you can ask. I think all of you should ask that from God and the universe, or from the Almighty, that you get that mental uh, power to stay strong in all situations. That's really मैम nice. भगवान तो आपको एक ही देगा ना, आपको तो एक ही वरदान देगा। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे ना तो एक क्या हजारों आपको मिल जाएगा अचीवमेंट। जी जी जी, वंडरफुल वंडरफुल। जी सर, अभी एक खास क्वेश्चन देखिए भाई साहब। आजकल जो देखते हैं, यहाँ उम्र का कोई बात नहीं, कोई भी हो सकता है। मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़े लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, शायद शादीशुदा हो या ना हो, या उम्र में बड़े भी हो। तो अगर मन उठ डिस्टर्ब हो गया, या कोई साथ नहीं दे रहे, या बात नहीं कर रहे, या कोई ब्रेकअप हो गया, कम मार्क्स मिले, जॉब चली गया, पैसे नहीं है जेब में, तो उन लोग मरने का सोचते हैं, या नेगेटिविटी में सोचते हैं, तो घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते, महीनों तक वो डिप्रेशन में डूबे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप किस तरह का एक सुझाव देना चाहते हैं, या किस तरह उन लोगों को अपलिफ्ट करेंगे आप अपने बातों से? या मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। हर कोई मतलब एक फेस मतलब से गुजरा है कि डिप्रेशन में चला जाता है, चली जाती है। तो मेरा भी वो फेस गया है अभी। तो एक ही लाइफ है, आप फुल एंजॉय करके जियो। जब जब चला गया, ब्रेकअप हो गया, ये हुआ वो हुआ, ये एकदम मतलब नॉर्मल बात है। हर 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 किसी के पास ये मतलब दुख है कि मेरा जब अभी नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप मतलब चल नहीं रहा। तो अगर आप स्ट्रांग होंगे ना, मेंटली स्ट्रांग, यही बात बोला था मैंने, मेंटली स्ट्रांग होंगे ना, तब आपके लाइफ में ऐसे करके कुछ बड़ा सा अचीवमेंट आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो डोंट लूज योर होप एंड डोंट थिंक अबाउट सुसाइड, क्योंकि लाइफ एक ही है। हमको पता नहीं है कि इस लाइफ के बाद हमको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। तो एक ही लाइफ है, फुल दम एंजॉय करो। और अगर मतलब कुछ परेशानी आ गया, अगर कुछ बाधा आ गया, तो अपने आप से कहो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एवरी डे। यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑन डायरी, एंड डेफिनेटली एक ना एक दिन डेफिनेटली यू विल ओवरकम, एंड आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगा। सो डोंट लूज। हर कोई डिप्रेशन से अभी मतलब जूझ रहा है, कोई ओवरकम कर रहा है और कोई सुसाइड कर रहा है। तो डोंट डू दिस। सुसाइड इज नॉट ए सोल्यूशन। आपको जिंदगी का हर जंग जीतना है, हर जंग। क्योंकि जिंदगी, हम एक सुबह होके एक नई नई जिंदगी तो लेते हैं, लेकिन एक नए जंग की शुरुआत होता है हर सुबह। तो आप लोग इतने बचपन से अभी इतना एज हो गया आपका, तो इतना जंग से आप लोग इस एनर्जी से मतलब इस जर्नी से आप लोग इस मतलब उम्र तक पहुंच गए हो। तो डेफिनेटली भगवान आपके राह में है। तो डोंट लूज। Wow, that's beautiful. It's a wonderful message, wonderful message. Thank you very much for that beautiful message, sir. अभी एक बड़ी सी क्वेश्चन, उसके बाद में रैपिड फायर राउंड होगी सर। चले हम? ठीक है सर। ये क्वेश्चन है,
दो क्वेश्चन है। एक माफी को लेके, अभी हमारे जिंदगी में हमको बहुत सारे लोग हर्ट करते हैं, अपने भी और गैर लोग भी। तो आप जल्दी माफ कर पाते हैं या दिल में वो दुख रख कर, या कुछ रिवेंज, रिवेंज, बदले की आग में जलना ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा आपको कुछ लगता है, या वो माफ करके आगे जाना, जस्ट फॉरगेट एंड गो अहेड? मैं जल्दी से जल्दी माफ कर देता हूँ, और इसके लिए मुझे फिर मतलब विश्वासघात मिलता है। तो जल्दी से जल्दी माफ करना है, लेकिन मतलब सावधानी के साथ, क्योंकि बहुत बार मैंने बहुत लोगों को माफ 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 मतलब माफी दे दी है, लेकिन फिर वो रेपिटेड वो करती ही रहती है या रहता है। तो मुझे माफी तो करना है, लेकिन मतलब कभी मतलब वो ये भी डर लगता है कि अगर इस बार माफ कर दिया गया तो दूसरी बार वो क्या करेगा, ऐसा मतलब डर लगता है। वेरी ट्रू, आपने बहुत सही कहा। माफ कर दिए, फिर दोबारा और क्या करेंगे, और इसको ज्यादा करेंगे या फायदा उठाएंगे वो चीज का। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो ये सब बहुत बार हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। बार बार माफ किया, फिर यू नो इट्स लाइक दैट। आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। सो जितना हो सके माफ करना है, लेकिन उससे ज्यादा अगर अपना फायदा कोई उठा रहे तो उसको कट कर देना है, चाहे अपने हो या बाहर वाले हो। तो अपने आप का, अपना मेंटल स्टेबिलिटी को कायम रखते हुए बाउंड्रीज, जैसे हेल्दी बाउंड्रीज रखना है। जी भाई साहब। नाउ सी, नाउ वी गो ऑन। आप जब काम को जाके आते हैं, या आपके बचपन में या आपके कॉलेज के टाइम में, कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ एक ऐसा वाइल्ड एनिमल के साथ? यू नो व्हाट्स अ वाइल्ड एनिमल? लाइक समथिंग लाइक maybe a snake, या or या maybe something like that, ऐसा, other than the pet animal, some wild animal? नो मैम, अभी तक तो नहीं No, हुआ। nothing like that. Okay, that's good, that's really nice. क्योंकि जब हम चल रहे थे एक बार हमारी बहन के साथ, जब हम 16 साल के थे, तो हमारे सामने एक ऐसा स्नेक जा रहा था। तो उसके ऊपर पैर रखने वाली थी, लेकिन देख के हट हट गए पीछे। इट वॉज 6 o'clock in the evening. तो तो आई एनकाउंटर समथिंग लाइक दैट डेंजरस। तो क्या अभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ, नहीं। लेकिन ओके, अभी मतलब मेरे मतलब वो हर मतलब लाइफ, हर मतलब पूरे लाइफ में एक ही मतलब वो मतलब मुझे मतलब वो होगा कि मैंने एक दिन ऑफिस के जाने के मतलब जो रास्ते है वहां से जा रहा था, बारिश हो रही थी, मेरा मतलब एक्सीडेंट हो गया, और मेरा पूरा राइट जो पैर है उसका लिगामेंट पूरा मतलब फ्रैक्चर हो गया। तो इसके लिए मैंने पूरे 6 महीना मतलब डांस नहीं कर पा रहा था। 3 महीना बेड पे था और 3 महीना डांस नहीं कर पा रहा था। उस वक्त मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था ना कि पूछिए ही मत। हर रात को मतलब मैं रोता था कि हे भगवान, मैं तो कभी डांस नहीं कर पाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा। मेरे गुरु जो है, गुरु को फोन करता था कि मैं शायद डांस नहीं कर पाऊंगा। तो उस वक्त मेरे गुरु ने, मेरे मॉम ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मुझे मतलब ये दिया, हौसला दिया कि नहीं तुम तो कर पाओगे, या डेफिनेटली। एंड आफ्टर 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ प्रोग्रेस होके होके अभी मैं डांस पूरा फुल तरीके से कर पा रहा हूँ। wow, that's really nice. डॉक्टर ने भी बोला था कि शायद तुम डांस नहीं कर पाओगे उतना पहले जितना करते थे। तो नहीं, मैं तो पहले से भी ज्यादा भी डांस कर पा रहा हूँ। Yes, thank you for sharing that incident. And we are happy, हम बहुत खुश है कि आप फिर डांस फॉर्म में आ चुके हैं, और पूरे आपके प्रोग्राम्स जो है, रील्स जो है, आप जो कर रहे हैं कंटेंट, इट्स गोइंग at the next level. That's wonderful. That's really nice. Thanks for sharing. Now we'll have a small segment called as the rapid fire round. Rapid fire round जाने से पहले, अगर आपके पास और कुछ शेयर करने का इच्छा है, कुछ कुछ भी जो हमने नहीं पूछा, आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में रैपिड फायर राउंड के अंदर जाएंगे। और मैम बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो एक साथ डांस, एक्टिंग और स्टूडेंट लाइफ कैसे मैनेज करें। बहुत लोग मुझे मैसेज करता है। तो मैं बोलूंगा कि हर काम संभव है अगर आपका मैनेजमेंट सही है। आप समय को बांट लो कि ये समय मैं डांस के लिए छोड़ूंगा, और ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा, और ये मैं पढ़ाई के लिए छोड़ूंगा। अगर आप दिन भर पढ़ते ही रहे तो माइंड फ्रेश करने के लिए आपके पास मतलब कुछ भी नहीं बचा रहेगा। तो आपको माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है। तो पढ़ाई के बीच बीच में कभी एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कीजिए, डांस क्लास भी ज्वाइन कीजिए, आर्ट क्लास भी ज्वाइन कीजिए, और इससे
आपका माइंड दुगना हो जाएगा, मतलब फ्रेश दुगना हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट का करिकुलम नहीं है, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। इससे तो मतलब हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, हम अपने काम में लगे रहने के लिए और मतलब हौसला हौसला मिल जाता है हमको। तो डोंट थिंक दैट कि पढ़ाई होने के बाद ही हम ये शुरू करेंगे, तो नहीं। अभी तो मतलब मैनेजमेंट का बहुत कोर्सेज भी चल रहा है, और मम्मी पापा भी अपने घर में मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। तो बच्चों को ये भी सिखाइए कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, ये पढ़ाई के लिए, ये डांस के लिए, ये मोबाइल देखने के लिए, ये एक्टिंग के लिए, तो डेफिनेटली हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी हम रैपिड फायर राउंड की ओर जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, जॉइन अस नाउ। ये ब्यूटीफुल राउंड रैपिड फायर राउंड कहते हैं इसको, और सर के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में जानेंगे। चलिए हमारे साथ। सर, आपका सबसे फेवरेट स्नैक्स कौन सा है? कोबरा। वो क्या होता है, हमें किंग बताइए। कोबरा। ये लाइक आई मीन टू से, जब हम स्नैक्स के बारे में कहते हैं ना, स्नैक्स का मतलब कुछ खाने वाली चीज। क्या? ओके ओके ओके, वो उसने। जी स्नैक्स, यस। कौन सी स्नैक पसंद है, लाइक समोसा, कचौरी या चिप्स? मैम, समोसा। समोसा, जी सर। और आपका सबसे फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट? ग्रीन टी विथ बिस्किट। Wow, green tea with biscuits. That's really nice. Okay, so you're maintaining the, a या good diet, huh? That's really nice. I mean, you have to dance, so that means you need to have that slim figure. So वो secret हमें बताना है। अब तो green tea बता दिए। जी, या that's really nice. So आपका सबसे favorite महीना कौन सा है? महीना अप्रैल। अप्रैल क्यों? बहुत हरा भरा सा लगता है, बारिश होता है। मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। और अभी हमारे आसाम में तो बिहू चलने वाला है, 2 दिन है। तो मुझे इसके लिए बहुत मतलब अच्छा लगता है। मुझे बारिश बारिश सुन के ही मैं मतलब क्यों ताजा ताजा फील करता हूँ, मुझे पता नहीं है। अगर सोने के टाइम अगर बारिश आ गया तो आई फील लाइक मेडिटेट। Wow, that's really nice. Beautiful sir. आपका बर्थडे हम जान सकेंगे कौन सा दिन है? 2303, 23 मार्च। 23rd March. Okay, just recently है ना? या थोड़े ही दिन. So belated happy birthday to you. That's really nice. 23rd March. That's wonderful, sir. अभी एक important question. Is it comfort or style? क्योंकि आप स्टाइल में भी माहिर हो, उसमें कंफर्ट भी दिखता है आपका, तो इन दोनों में चुनो, तो क्या चुनेंगे आप? कंफर्ट। ओके, दैट्स रियली नाइस। हफ्ते में 7 दिन है, आपका सबसे फेवरेट वाला दिन कौन सा है? संडे। क्यों? ऑफिस नहीं जाना पड़ता है ना। जी 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 जी, आई गेट दैट। यस सर। अभी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कॉफी और टी रखे हैं आपके साथ, तो आप लेंगे या सिर्फ ग्रीन टी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं? मैम, कॉफी कॉफी खाऊंगी। कॉफी, यू लाइक कॉफी? या Oh, that's wonderful. That's really nice. Now, sir, the next question coming up is like एक सुंदर सा दिन, एक प्यारा सा दिन, एक शब्द में कैसे एक्सप्लेन करते? बस एक ही शब्द में बोलना है, उसको कैसे वर्णन कर पाओगे आप? फैमिली, विथ फैमिली। Wow, that's beautiful. That's really wonderful, sir. सबसे फेवरेट वाला सीजन आपने कहा रेनी सीजन है ना? या यस सर। अभी हम लोग आइसक्रीम्स को लेंगे, आइसक्रीम्स, केक्स, चॉकलेट्स। तो इन तीनों में आपका फेवरेट कौन सा है? मैम, अभी तो आइसक्रीम ही है, लेकिन वो शुगर की वजह से मुझे मतलब वो खाने का मन नहीं होता है कभी, क्योंकि अब आपने तो बोला ही अभी डाइट पे हूँ मैं, तो मतलब शुगर मतलब नहीं। अवॉइडिंग है ना? या मैं भी करती हूँ, बट फिर चोरी करके खा लेती हूँ मैं, कि मैं नहीं नहीं होता मुझसे, मैं तो फिर चीट करती हूँ, मैं फिर चीट करके खा लेती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं मैम, नहीं, मैं एकदम पूरा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। मतलब अगर दूसरा कोई बोले कि आइसक्रीम खा लो, तो मैं डेफिनेटली नो नो। मैं भी ना ना बोल के फिर मैं खा ही लेती हूँ, मैं आई विल ब्रेक दैट। यस, बट गुड, यू आर वेरी, व्हाट यू से, रेगुलर ऑन मेंटेनिंग, सम, अगर ये लगा हमको यही करेंगे हम, तो डिसिप्लिन लाइफ, आई लाइक दैट।
Yes, that's really good. Very good. तो हम भी करेंगे, आज से ट्राई करेंगे, हम करेंगे नहीं, ट्राई तो करूंगी मैं. Definitely. Yes. Now, sir, we come to the next question. The next question is your favorite kind of like music. Like earlier you said song, ghazals and all of that soft music. Like even Western music, you're attracted to that? No, ma'am. No. Okay, so yeah, I understand. I understand. आपका favorite teacher का नाम कौन सा है? My favorite teacher, अभी मैं कथक का जो टीचर है, कथक गुरु, उनके ही नाम लेना चाहूंगा. मेरे मरमी में थी, जो बहुत एक बड़ी हमारा असम का इंटरनेशनल कथक डांसर है, मरमी मैम जी. वो मेरे सबसे फेवरेट है. वो बहुत लाइफ में पॉजिटिव है, और उससे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए. जी जी जी. अभी आपको अच्छा लगता है कौन सी जगह? ये बीच हो सकता है, समुद्र के किनारे, या वन, या पर्वतों के आसपास अगर आप घूमे फिरे तो वहां पर अच्छा लगता है, लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट और द बीच? बीच. है असम में, इज देयर एनी बीच और समथिंग लाइक दैट? नहीं, असम में तो रिवर है लेकिन बीच नहीं है. अच्छा अच्छा. जी जी. सर, अभी आपको आप सिंगिंग भी करते हैं? डू यू सिंग ऑल्सो? पहले करता था मैम, अभी तो मतलब. नहीं, तो मोर ऑफ डांस एंड एक्टिंग इट इज, राइट? या. यस. नाउ सर, अगर आप किताबें पढ़ते हैं, आप स्टोरी बुक्स ऐसा हाँ पढ़ते हैं? मैम. हाँ, कभी कभी. सबसे फेवरेट वाला स्टोरी बुक कौन सा है? मैम अभी तक तो मतलब ट्विंकल था. ट्विंकल मतलब एक आसामीज मतलब मंथली वो था, तो वो ट्विंकल था. वो मतलब मैगजीन था, आसामीज मंथली मैगजीन. तो अभी तक तो वो ही रहा है. जी जी जी. ट्विंकल एक कॉमिक बुक है ना वो, इज इट? हाँ, कभी कभी कॉमिक है, कभी कभी सीरियस है. तो हमारे यहाँ पे तो हम जो जब बच्चे थे तब हमारे जो बचपन बीता था तो ट्विंकल के ही साथ बीता था, ऐसे मतलब. उसमें एक किरदार है सुपंडी बोल के, वो है या मैम, शुपन. या. दैट्स वंडरफुल. दैट्स रियली, हमारा भी फेवरेट है वो ट्विंकल. यस. That's really nice. Thank you for sharing. That's wonderful. हमें भी याद दिला दिया. Yes, that's a wonderful book. Sir, अभी 2-4 questions और बाकी है और we finish the session. अगर आपको फ्रूट्स में कुछ अच्छा सा फ्रूट चुनना है, कौन सा फ्रूट आपको अपने सेहत के लिए सही, you think this is the best fruit for your health with regard to diet and all of that? Orange. Oh, great. Vitamin C. Yeah. That's great. Okay, sir. आज तक आपको सबसे बड़ा वाला तोहफा कौन सा मिला है? Gift, the best gift that you've received till date. Best gift. Support. Okay, that's really nice. That's wonderful, sir. Yes, sir, that's really nice. So, sir, one last question now. It's not a question, it's a request. कि आप हमारे लिए ऑलरेडी इतने सारे गिफ्ट दे चुके हैं, अपने जिंदगी के बारे में बताए, अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हम सभी के लिए. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल दैट यू शेयर द टाइम टुडे विद अस. एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आप 3 अच्छे शब्द हमारे लिए दे दीजिए एक गिफ्ट के नाते हमारे लिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू के अलावा एनी 3 वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स. आप हिंदी में या इंग्लिश में दे सकते हैं अपनी तरफ से. Good thinking, practice, and help. Good thinking, practice and health, right? Help. Help. Okay, that's help. So good thinking, practice, and help others. That's help yourself and help others. That's really nice. So be very helpful and keep practicing what you are doing. Practice makes you perfect, and have wonderful thoughts. Sir, thank you very much for your beautiful mind. The way you think, the way you present yourself, the way you talk, everything is nice. We thank you so much, and lots of love to your mom and your friends and the people of Assam too. Lots of love to all of you, dear friends. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. So, dear friends, with this, we come to an end to the International Fab Talks for today, friends. I had a wonderful time getting to know this person. He's become a celebrity, and his work is celebrated across the world.
If you'd like to know more about his work, you could connect with him on Facebook and on Instagram as well. We'll share the description details about him in the description link that we send along with the YouTube recorded video. You could have a look at it. You could connect and join and support him in this beautiful mission of getting to know about the Indian culture, the Sanatana Dharma. If I'm not mistaken, if I'm getting that word right. And if you like what the International Fab Talks is doing, connecting with the unsung heroes and with all great individuals who have something to share, you might be also one of them who would like to join us on the International Fab Talks. You're most welcome. Do connect with us on the International Fab Talks at gmail.com, or you could connect with us directly on one of our shows or in the comment box. Stay safe and stay blessed. Namaste. And happy Bihu to the people of Assam. Happy Bihu festival to you, sir. Thank you, madam.